জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন, ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন। জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দন, ত্রিভুবনে করে যায় চরণ বন্দন। নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর, নদিয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলুকর। নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর, নদিয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলুকর। জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন, ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন। জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দন, ত্রিভুবনে করে যায় চরণ বন্দন। কেহ বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা, গোলকের বৈষ্ণব লীলা প্রকাশ করিলা। কেহ বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা, গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা। জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন, ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন। জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দন, ত্রিভুবনে করে যায় চরণ বন্দন। শ্রীরাধা ভাবে এব গৌড়া অবতার, হরে কৃষ্ণ নাম গৌড়া করিলা প্রচার। শ্রীরাধার ভাবে এবে গৌড়া অবতার, হরে কৃষ্ণ নাম গৌড়া করিলা প্রচার। জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন, ত্রিভুবনে করে যায় চরণ বন্দন। জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দন, ত্রিভুবনে করে যায় চরণ বন্দন। বাসুদেব ঘোষ বলে করি জড় হাত, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। বাসুদেব ঘোষ বলে করি জড় হাত, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন, ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন। জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দন, ত্রিভুবনে করে যায় চরণ বন্দন। বাসুদেব ঘোষ বলে করি জড় হাত, যে গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। বাসুদেব ঘোষ বলে করি জড় হাত, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দন, ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন। জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দন, ত্রিভুবনে করে যায় চরণ বন্দন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় প্রভু পাদা জয় প্রভু পাদা, জয় প্রভু পাদা জয় প্রভু পাদা। জয় প্রভু পদা, জয় প্রভু পদা, জয় প্রভু পদা, জয় প্রভু পদা। জয় গুরু দেবা জয় গুরু দেবা, জয় গুরু দেবা জয় গুরু দেবা। জয় গুরু দেবা, জয় গুরু দেবা, জয় গুরু দেবা, জয় গুরু দেবা। নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল, হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল। নিতাই গৌরা হরি বল, হরি বল, হরি
বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল। জয় জয় নাম সংকীর্তন কি জয়। জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়। সকল ভক্তবৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি দুবাই ভক্তবৃন্দ কি জয়। ডিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 সব মানুষ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 12th चैप्टर भक्ति योग से 6 and 7 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রী মূর্তিশীল অভয় চরণামৃত ভক্তি বেদান্ত সাই প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। 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 हरे कृष्ण। 12th चैप्टर भक्ति योग से 6 and 7 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। आप लोग पीछे पीछे बोलिए। जे तु सर्वाणि कर्माणि जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सम्नस्स मत्पराः मोहि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। मां ध्यायन्तु उपासते। ये 6 नंबर श्लोका 7 लाइक दैट। तेषामहं समुदधर्ता तेषामहं समुद्रधर्ता मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मज्जावेशित चेतसाम्। मज्जावेशितचेतसाम्। अगेन नाउ 12 चैप्टर भक्ति योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 6 and 7 नंबर श्लोका। जेतु सर्वाणि कर्माणि जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सम्नस्स मत्पराः मोहि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। मां ध्यायन्तु उपासते। तेषामहं समुदधर्ता तेषामहं समुद्रधर्ता मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मज्जावेशित चेतसाम्। मज्जावेशितचेतसाम्। हरे कृष्ण। रिपीट नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 12 चैप्टर भक्ति योग से 6 and 7 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। जेतु सर्वाणि कर्माणि जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सम्नस्स मत्पराः मोहि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। मां ध्यायन्तु उपासते। तेषामहं समुदधर्ता तेषामहं समुद्रधर्ता मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मज्जावेशित चेतसाम्। मज्जावेशितचेतसाम्। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ অধ্যায় 12
12 चैप्टर, हाँ बोलिए। 12 चैप्टर श्लोक नंबर 6 by 7 6 and 7 and 7 ना जेतु सर्वाणि कर्माणि मोहि संनस्य मत्पराः वेरी गुड। अनन्यनैवे योगेन मां ध्यायन्त उपासते वेरी गुड। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मज्जावेशितचेतसाम्। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। শ্রী ভগবদ গীতা যথাযথ অধ্যায় 12 শ্লোক নম্বর 6 and 7 যেহেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি नस्स সংনস্য মত পরাহ पराह অনন্য অনন্য নৈব अनोन्येनैव যোগেন যোগে যোগেন যোগেন মাং माम যোগেন মাং ধায়ন্ত ধায়ন্তু উপাসাতে তেষাম तेषामहं সমুদ্রতা समुद्धर्ता মৃত্যু সংসার সাগরত ভবানী ন চিরাত পার্থ মজ্জা বেশিত चेतोसा। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता जथा चैप्टर 12 और श्लोक 6 and 7 वेरी गुड। ये तो सर्वाणि कर्माणि मये संन्यासमत्प्रहरः अनन्यनैव योगानि मम ध्ययन्ते उपस्तते तेषाम् अहं समुद्धत्र मृत्यु संसारसागत सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया अभिष्टाचेष्टम् मोहि आवेशित चेतसाम। ओके, काट करके बोला नीचे का तरफ, उसके नीचे का तरफ ही है इंग्लिश में ना। बोलिए आप। बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ অধ্যায় নম্বর 12 শ্লোক নম্বর 6 আর 7 ভক্তি যোগ আছে যেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি समनस्य मत पराह अनन्येनैव যোগেন উপাসতে तेषामहं समुद्धर्ता। हरे कृष्ण। ये श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। आप लोग पीछे पीछे बोलिए। जे जारा तू किंतु सर्वाणि समस्त कर्माणि कर्मो মই আমাতে সমনস্য ত্যাগ করে মত পরাহ আমাতে আসক্ত হয়ে অনন্যেন অবিচলিতভাবে এব অবশ্যই যোগেন ভক্তিযোগ দ্বারা মাম আমাকে ধ্যায়ন্তঃ ধ্যানপূর্বক উপাসতে উপাসনা করেন তেষাম তাদের অহম আমি সমুদ্ধর্তা উদ্ধার করি মৃত্যুর সংসার
সংসার সংসার সংসার সংসার সাগরাত সাগর সাগর থেকে থেকে ভবামি ভবানী হই ওই ন চিরাত নচিরাত অচিরেই অচিরে পার্থ পার্থ হে পিতা পুত্র হে পিতা মই মই আমাতে আমাতে আশেষিত আশিসিত আবিষ্ট আবিষ্ট চেতসাম চেতসা চিত্ত চিত্ত ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড এবারে বাংলা অনুবাদটা দেখে নিচ্ছি। যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পিত করি মত পরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ধ্যানপূর্বক উপাসনা করে, হে পার্থ আমাতে আবিষ্ট সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে চিरई उद्धार करी। देखिए क्या बात बताने को जा रहा है। आज का श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों श्लोका एक साथ में। इसका प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया था, क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतोसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह बद्भी ह अवापते। इसमें क्या बताया था, जो लोग मेरा उपासना नहीं कर रहे, मतलब जो अवक्त मतलब वो जो व्यक्ति निराकार का उपासना कर रहे, वो मेटीरियल जगत में रहते हुए क्या कर रहे, वो जीवधारी मनुष्य क्या कर रहे, ओनली दुख मिल रहा है, सुख एक भी नहीं मिल रहा है। तो कौन मनुष्य, जो भगवान का उपासना नहीं कर रहे। कृष्ण भगवान खुद बताया था 5 नंबर श्लोका में, और इसका पहले भी श्लोका में कृष्ण भगवान बताया था जो लोग थोड़ा सा भी उपासना कर रहे वो मतलब फिर भी एक मार्ग में है, ऐसा धीरे धीरे आ रहे। और आज का श्लोका 6 और 7 नंबर श्लोका में क्या बताने को जा रहे, जो मेरा पास आत्मसमर्पण किया है, जो मनुष्य मत परायण और भक्तियोग ध्यान पूर्वक उपासना कर रहा है, एनी टाइम लगा हुआ है भगवान का सेवा में, हे पार्थो अर्जुन को संबोधन करके बता रहे जो वो मेटीरियल जगत में जो मृत्युमय संसार कौन सा है, जो हम लोग मेटेरियल जगत में रहते हुए जो कितना क्लेशदायक है, कुछ भी हो सकता है। मेटेरियल जगत बहुत सारी फॉल्स है, सी जो समुद्र है उस तरफ का फॉल्स है। तो ये बात बताने को जा रहे हैं, जो फॉल्स जो है समुद्रों का तरह बहुत सारी कठिनाई है, वो संसार से मैं तुमको उद्धार करूँगा। कैसा, जो इसलिए ये बताने को जा रहा है, जो धरती भगवान ने बनाया, ये भगवान का एक कारागार है और ये दुख का सागर है। जैसा 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 16 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया था, आवम्बो भूमानो लोकाह पुनर्वर्तिनो अर्जुन माऊ पेत्तो तु कौंतियो पुनर्जन्म न विद्यते। ये धरती से बम्बलोक तक जितना साइज ऑफ स्टेज है सबका लय प्राप्त होता है। इसका मतलब हम लोग जहाँ पर अभी बैठे हुआ है एक क्षणस्थायी है, पारमेंट नहीं है। हमारा पारमेंट रूम है कौन सा, वैकुंठ लोक, जहाँ पर भगवान है और वही हम लोगों को जाना है। ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं, जो ये संसार का सागर है, समुद्र जो है, समुद्र कितना बड़ा है उतना बड़ा कठिन नहीं है, इसमें कभी भी क्लेश आ सकता है, टेंशन मतलब आ रहा है। तो इसलिए तो आदि शंकराचार्य भी बताया था 22 नंबर श्लोका में, पुनरापि जननम पुनरापि मननम पुनरापि जननी जठरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाय मुरारे। मतलब बारंबार जन्म, बॉर्न एंड डेड, ये जो बारंबार जन्म, ये जो सर्केल, ये हम लोग को बारंबार होते जा रहा है मेटेरियल जगत में। आज मैं मनुष्य जन्म मिला, कल पशु जन्म, कभी झाड़ जन्म, ये जो सर्केल जो है बॉन्ड एंड डेड, इसको ये सर्केल को तोड़ना है, मतलब क्लोज करना है, ब्रेक देना है। तो कैसे देगा, पुनरापि जन्म पुनरापि जननी जाता है, और मातृ गर्भ में हम लोग को जन्म भी होता है, जो कहा जाता है वो, और क्या है, पुनरापि जन्म पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम इहो संसारे बहु दुष्ट है कृपया अपरे पाय मुरारे। ये जो संसार मेटीरियल जगत है बहुत कठिन नहीं है, और कौन उद्धार कर सकते, कृपया अपरे पाय मुरा आरे। मुरा बोलेगा तो मुरारी, कृष्णा का और एक नाम है मुरारी। तो कृष्णा का नाम लेगा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो हम लोग ये धरती से उद्धार हो सकता है। इतना कठिनाई होने का साथ साथ ये आदि शंकराचार्य 22 नंबर श्लोका में कहा गया, व भजो गोविंद सिंगिंग भी कहा जाएगा। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आदि शंकराचार्य ने बताया। तो
आदि शंकराचार्य का जो एक कोटेशन, ये एनी टाइम हम लोगों को याद रखना चाहिए कि बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, बॉर्न एंड डेथ, बॉर्न एंड डेथ। देखिए ना, हम लोग को जन्म हो रहा है फिर मृत्यु हो रहा है, ये संसार का एक्टिव होते हुए, और हम लोग को बहुत कठिनाई में है। कभी ये श्लोक का ऊपर ही बात आने को जाए, बहुत कठिनाई है, और उसमें से बॉन्डेज होना है, मतलब क्लोज करना है उसको। ये आना जाना का जो चक्र है इसको बंद करना है। कैसे करेगा? मुरारी कृष्णा का आराधना होना चाहिए। तो आज का श्लोक में वही कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, जो हम लोग को जो मृत्यु का संसार, इसमें से हम लोग को छुटकारा कैसे मिलेगा? भक्ति मार्ग में जो लगा हुआ है, जो मनुष्य यहीं तो मेरा गुणगान करे वो मनुष्य। और इसका प्रीवियस श्लोक में क्या बात आता है? जो उसको जो मेरा आराधना कर रहे हैं, बस दूसरा कोई फिलोसफी बात, वो सिर्फ दुख और दुख मिल रहा है, सुख कुछ भी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है, इसमें इंजॉयमेंट है। ओके, अच्छा, तात्पर्य प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर क्या देने को जा रहे हैं हम लोग थोड़ा देख लेता हूँ। पहले बेंगली में এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবত ভক্তরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেননা ভগবানের কৃপায় তার অচিরে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি लाभ করে। देखिए पहला लाइन पे प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं, स्पष्ट क्लियरली बताने को जा रहा है, जो भक्ति मार्ग में जो लोग हैं पिचुअल पार्ट में, वो लोग क्या है? भाग्यवान। भाग्यवान है तो लाखी, बहुत सारी मनुष्य हर वर्ल्ड में है, और बहुत सारी अभी आज का जो क्लास हो रहा है बहुत सारे लोग बाहर भी घूम रहे हैं। तो इधर बताने को जा रहा है जो भाग्यवान, जो लाकी मैन है, वो सत्संग करता है। तो जो लोग भक्ति मार्ग में है वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है भगवान का, ये बात है, वही भाग्यवान है। भाग्यवान बोल के तो लाखी। और इधर बताने को जा रहा है जो मेटीरियल जगत में ये जो बहुत कठिनाई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें से मान लो भक्ति मार्ग में रहेगा तो इसमें से हमारा क्या फल मिल सकता है? मेटीरियल जो टेंशन, जो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन टेंशन जो है उसमें से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भक्त तो निष्काम, निष्काम बोलेगा तो कोई मेटीरियल इतना आकांक्षा नहीं है, मतलब ये चाहिए वो चाहिए ऐसा लाइक दैट, नो। तो इसलिए निष्काम भक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सभी अशांत, जो इसलिए कृष्ण भक्त क्या है? निष्काम है, उसका इतना आकांक्षा नहीं है। सब कुछ जो जो जरूरी है वो तो हम लोगों को लेना है, क्योंकि इतना नहीं है जो उसका ऊपर से फोकस डाल दो, जो मटेरियल जगत में ज़्यादा एक्टिव होते पड़ रहा हो। तो ऐसा होगा तो हम लोग भक्ति मार्ग में फॉल डाउन होगा। तो इसलिए इधर बात आने को जा रहा है, जो मोक्ष मिल जा रहा है, मटेरियल जगत में रहते हुए मोक्ष मिल रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली भगवान का गुणगान करेगा तो। ओके, इसका बाद देख लेता हूँ। शुद्ध भक्ति যোগে ভক্ত উপলব্ধি করতে পারেন যে ভগবান মহান এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবাত্মায় তার অধীন, প্রতিটি জীবেরই কর্তব্য ভগবানের সেবা করা, আর সে যদি তা না করে তাহলে তাকে মায়ার দাসত্ব করতে হবে। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इधर जो बताने को जा रहे हैं शुद्ध भक्ति उपलब्धि, हम लोगों को ये चल रहा है कौन सा? भक्ति योग, ये सबसे हाई स्टेज है, इसका आगे और कोई स्टेज नहीं है, ये भक्ति मार्ग का हाई स्टेज। तो ये स्टेज में जो लोग आ जाता है वो लोग शुद्ध भक्ति, इसको प्योरिटी कहा जाता है। और भगवान का मतलब आराधना करना हर मनुष्य का कर्तव्य है, कोई भी होने दो, जीव मनुष्य जो भी हो, भगवान का आराधना करना जरूरी है और भगवान का सेवा करना। अगर कोई मनुष्य सोचेगा मैं भगवान का क्यों गुणगान करूं, तो उसका फॉल डाउन अनिवार्य है। तो वही बात इसमें बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वो माया का दासत्व करो, है कृष्ण का दासत्व करो, नहीं तो माया का, दोनों में से एक करना पड़ेगा, मिडिल में नहीं रह सकेगा। जैसा इधर एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं, अगर भगवान का सेवा में लगा रहेगा, भगवान का गुणगान करेगा, वो फायदा में रहेगा, वही लाकी मैन है। और जो नहीं कर रहे हैं उसका बैड लक चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो माया का जाल में फंस रहे हैं। माया का जाल में क्या क्या है? 4 रूल रेगुलेशन, जो बैड तमोगुणों का भाव है वो रहेगा। पहला होता है अवैध त्रिसंग में एक्टिव हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य, और उसका बाद ड्रिंक वगैरह ये सब में एक्टिव हो रहा है, और लॉटरी जुआ ये सब बैड जो है ये सब, और तमोगुणों का जो खाना है जो सात्विक नहीं है, जैसा मच्छी मटन एवरीथिंग जो जिन्नसारी है तमोगुण। तो ये 4 चीज़ ये माया का पोगल में ये लोग फंसते जा रहे हैं। जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में उन लोगों को मालूम है ये 4 रूल रेगुलेशन का हमको फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना है वो सब चीज़ छोड़ना है, ये मन। तो इसलिए
अगर भगवान का गुणगान करो वो सबसे परफेक्ट है। भगवान खुद ही बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं। और अगर नहीं करे तो तुम्हें मेटीरियल जगत में पसते जाओ। आस्ते जाओ, आस्ते जाओ। हाँ, तो ये भी चक्राकार भी है जन्म मृत्यु का। इसका बाद हम लोग थोड़ा बेंगल में देख लेता हूँ टाइमिंग। পূর্বে যেটি বলা হয়েছে কেবলমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাই আমাদের পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে হলে আমাদের মনকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নিবদ্ধ করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমাদের কর্ম করতে হবে। যে কর্মই আমরা করি না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু সেই কর্মটি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করতে হবে, সেটি কি भक्तियोगेर मानदंड। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो भगवान का आदान प्रदान ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम लोग भगवान का पास आत्मसमर्पण करेगा, मतलब सरेंडर करेगा, तो हमारा मन एवरीथिंग भगवान को देगा, तो इसमें सबसे अच्छा होगा। इसमें क्या होगा, हमारा मेटीरियल जगत में इतना आकांक्षा नहीं रहेगा और हर कर्म भगवान के साथ कनेक्टेड होना थोड़ा ज़रूरी है। कनेक्टेड रखना कैसा, तो हम लोग जो भी कर्म करूँ भगवान के साथ कनेक्टेड होते हुए सोचने का। अगर इधर वो बात बताने को जा रहे हैं, जो अपना कर्म करो मुश्किल नहीं है, आपका जैसा मालूम होगा तो आपका वो कर्म का साथ आप भगवान का नाम स्मरण करो, वो भी एक कनेक्टेड है। स्मरण करना इतना मुश्किल नहीं है। जो जिसका कर्म है, कर्म का हिसाब से, अभी जो मनुष्य अकाउंट का कर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली नाम स्मरण करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसका काउंटिंग का काम है। जो लोग मेटीरियल जगत में दूसरा कोई कर्म करे, जैसा खेती में, ज्वेलरी, हाँ और भी कोई कर्म होगा, तो उसमें आराम से कर सकते। जो लोग से काउंटिंग कर रहे हैं वो लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा, तो वो लोगों के लिए जितना हो सके वो कर सकेगा, क्योंकि कर्म भी इधर दे रहे हैं। कर्म अपना अपना करो, उसका साथ भगवान का कर्म एक्टिव करो, मतलब जॉइंट करो। जॉइंट करेगा तो प्लस करेगा तो क्या होगा, हम लोग को जो मेटीरियल जगत में जो मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए जो प्रोग्रेस है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें भगवान का एक भाव रहेगा, जो भगवान के लिए कर्म करेगा तो भगवान भी हम लोग को कृपा करेगा, मानदंड रखेगा। और मेटीरियल जगत में भी हम लोग को सम्मान मिलेगा, क्योंकि जो लोगों को भक्ति मार्ग का बारे में मालूम है, सब मनुष्यों को इतना मालूम नहीं होगा, वो लोग सोचेगा ये क्या है, ये कुछ नहीं। जो लोगों को मालूम है वो लोग आपको सम्मान करेगा, सबसे सम्मान ज़्यादा है भक्ति मार्ग में। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ। परमेश्वर भगवान श्री कृष्णेर संतोष विधान करा छाड़ा भक्त और किछुई कामना करें ना। तार जीवने एकमात्र उद्देश्य श्रीकृष्णके आनंद दान करा एवं सेई जन्य तिनि सब किछु त्याग करते पारेन, ठीक जेमनटी कुरुक्षेत्रेर युद्धे अर्जुन करेছিলেন। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম করে যেতে পারি এবং সেই সঙ্গে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি। এই অপ্রাकृत कीर्तन भक्त के परमेश्वर भगवान प्रति आकृष्ट करे। वही बात इधर भी फिर से क्लियरली बताने को जा रहे हैं। अर्जुन जिस टाइम कुरुक्षेत्र का जंग में मतलब बैटल फील्ड में जिस टाइम युद्ध करने के लिए कृष्ण भगवान क्या बताया, तुम मेरा नाम स्मरण करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनुस सरो युद्ध च, मामनु अनुस्मरो युद्ध च। इसका मतलब एनी टाइम तुम मेरा नाम स्मरण करते हुए तुम तुम्हारा कर्म करो, ठीक है। मज्जो पिता मनोबुद्धि मामे वैश्वी संग, तो तुम मेरे को प्राप्त होएगा। 8 चैप्टर 7 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु अनुस्मरो युद्ध च व सरो युद्ध च। तो इसलिए इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो सबसे इजी प्रोसेस सिंपल जो है, हरे कृष्ण मोहम्मद होली नेम चैंट करो कर्म करते हुए। तो मैं वही बात बताया, जो जिसका कर्म है कर्म का साथ वो नाम खाली एक्टिव करो, सिर्फ काउंटिंग का जो कर्म है वो छोड़ के, क्योंकि उसका थोड़ा कठिन नहीं होगा। और एक कर्म है वो भी छोड़ के, जैसा ड्राइंग वगैरह ड्राइंग होता है ना, उसमें भी थोड़ा भगवान का नाम स्मरण करना मुश्किल हो जाता है, तो वो बाद में आप लोग कर सकता है। जिसका जो कर्म है उसमें कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, भक्ति भाव, स्पिरिचुअल पार्ट का भाव रहेगा, और इसमें भगवान प्रति आकृष्ट रहेगा हम लोगों को।
তো इसका बाद বেঙ্গলি में देख लेता हूँ। ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে এভাবে তার সেবায় নিযুক্ত তার শুদ্ধ ভক্তকে তিনি অচিরেই জড়জগৎ থেকে উদ্ধার করবেন। যারা যোগ সিদ্ধি লাভ করেছেন তারা তারা ইচ্ছা অনুসারে তাদের ইঙ্গিত যে কোনো লোককে আত্মকে স্থানান্তরিত করতে পারেন এবং অন্যেরা নানাভাবে বিভিন্ন পন্থা সুযোগ নিয়ে থাকেন। কিন্তু ভক্তের ক্ষেত্রে এখানে স্পষ্ট হয়ে বলা হয়েছে যে ভগবান তাকে নিজেই তার কাছে নিয়ে যান। অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে নানা রকম সিদ্ধি लाभের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। तो इधर भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो भगवान ये जो लोग भक्ति मार्ग में है उन लोगों को सामने प्रतिज्ञा रखता है जो मेटीरियल जगत में अपना अपना कर्म करो और भगवान का साथ नाम का साथ कनेक्टेड होते हुए, और जो लोग भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस नहीं कर रहे मतलब भक्ति मार्ग में नहीं है बात दूसरा किसी का उपासना करे वो लोगों को पथ इतना परफेक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, इधर बात नहीं को जा रहे। और क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि वो लोग परफेक्ट मार्ग में नहीं आने को सोच रहे और मेटीरियल जगत में वो लोग फंसते ही जाएगा, ये इधर बताने को जा रहे हैं। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो सबसे परफेक्ट मार्ग में है, ठीक है। और जो लोग नहीं है वो लोगों को मार्ग इतना परफेक्ट नहीं है, थोड़ा कठिन ही होएगा फिर भी भगवान को नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसलिए बड़ा पुराण में एक श्लोक इधर देने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। बड़ा पुराण का श्लोक हम लोग थोड़ा देख लेता हूँ। नयामी परमम स्थानो मर चिरादि गतिम बिना गरुड़ स्कंद मारोप जच्छे मुनिराबितः। এই শ্লোক का বেঙ্গলি অনুবাদ। এই শ্লোকের তাৎপর্য প্রাকৃত লোকে অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান নিজেই তাকে অপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ত্রাণকর্তা রূপে বর্ণনা করেছেন। একটি শিশুকে তার পিতামাতা সর্বোত্তমে লালন পালন করেন এবং তার ফলে সে নিরাপদে থাকে, ঠিক তেমনি ভক্তকে যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রহলোকে যাবার জন্য কোনো রকম চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবান তার পরম কৃপা বলে তার বাহন গরুড়ের পিঠে চড়ে সে তৎক্ষণাৎ তার ভক্তকে জড়জগতের बंधन থেকে उद्धार करें। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं जो बड़ाओ पुराण में भक्त लोगों को भी अष्टांग योग का जितना सारी फॉर्म है वो करने का अनुशीलन करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड गीता का ऊपर से ही वादा किया जो लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं उसको भगवान मतलब गरुड़ का पीठ में चढ़ा के वो भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान धाम में लेके जाए। जैसा एग्जाम्पल स्वरूप प्रभुपाद जी इधर देने को जा रहे हैं जो छोटा जिस टाइम मतलब बेबी जो होता है शिशु वो क्या करता है पिता माता का अंडर में रहते हुए मतलब पालनी होता है। तो कृष्ण भगवान जो सबका पिता है वो जो कृष्ण भक्ति मार्ग में है उसको एनी टाइम भगवान ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में है उसको पिता का सम्मान कर रहे हैं, पिता भी भगवान जो है वो हम लोगों को देख रहा है। तो इसमें कोई दूसरा कोई गोहलो जितना सारी फॉर्म है उसमें कोई जाने का जरूरी नहीं है, वो इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है। और प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहा है जो भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके हरे कृष्ण। तो इसका बाद बेंगली में সমুদ্রের মাঝখানে পতিত হয়ে যে মানুষ ক্লেশ ভোগ করছে সে একজন দক্ষ সাঁতারু হলেও নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু কেউ যদি এসে তাকে সেই সমুদ্র থেকে তুলে নেয় তা হলে সে অনায়াসই রক্ষা পেতে পারে। তেমনি ভগবানও তার ভক্তকে জড়জগৎ থেকে উদ্ধার করেন। আমাদের কেবল ভক্তিযুক্ত ভগবান সেবায় নিযুক্ত হলে কৃষ্ণ ভাবনার প্রতি সরল পন্থা অনুশীলন করতে হবে। যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষেরই কর্তব্য অন্য সমস্ত পন্থা ত্যাগ করে सर्वदा भगवत भक्ति पंथा अवलंबन करा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। समुद्र जो सी जो समुद्र है उसका मिडिल पॉइंट में चला जाएगा तो वो कितना भी बड़ा वो स्विमिंग मैन हो फिर भी वो नज़दीक स्विमिंग मैन जो साँतारू है वो आ नहीं सकेगा, क्योंकि नज़दीक रहेगा तो आ सकेगा, क्योंकि वो मिडिल पॉइंट में जाएगा तो नहीं आ सकेगा। तो उसमें से वो कैसे मतलब उद्धार हो सकता है। तो इधर एक एग्जाम्पल आ रहा है, अगर भक्ति मार्ग में जो गुरु होगा गुरु वर्ग हम लोग को उद्धार कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल इस तरफ से दे रहा है कि प्रभुपाद जी जो लोग साँतारू है मिडिल में है फिर भी वो नहीं आ सकेगा,
तो हम लोग जो मेटीरियल जगत में है, अगर किसी का हाथ नहीं पकड़ो तो गुरु का बा जो लोग प्योर डिवोटी है उसका हाथ पकड़ लेगा तो हम लोग अनायास में भक्ति मार्ग में आ सके। तो ये जो इधर बताने को जा रहे, जो कोई भी अगर समुद्र के मिडिल पॉइंट में जाके उसको उठा ले पानी से तो वो बच सकता है। ऐसा ही गुरु का भी एक भाव होता है। तो मेटीरियल जगत में ये जो समुद्र है, ये भी एक समुद्र है, तो इसमें भी हम लोग फंसा हुआ है। तो हम लोग को गुरु और प्योर डिवोटी जो होगा वो हम लोग को उद्धार कर सके। तो ये इधर सरल पंथा अवलंबन करने के लिए बताने जा रहा है। और दूसरा कोई मार्ग इतना परफेक्ट नहीं है, बारंबार बताने को जाए। जो लोग बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट पर्सन, वो लोग भक्ति मार्ग में एनी टाइम प्रोग्रेस करते हैं। देखिए नारदीय पुराण में इसका संबंध में प्रतिपन्न है, जा वै साधन संप्रति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदात नोपि नरो नारायण आश्रय। ये श्लोके तात्पर्य এই যে সকাম কর্মে বিভিন্ন পন্থায় গতি না হয়ে অথবা মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের অনুশীলন না করে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলেই সব রকমের আচরণ, যোগ, দান, ধ্যান, যজ্ঞ, তপস্যা आदि समस्त फल प्राप्त हो जाए, सेटी भक्तियोगे विशेष आशीर्वाद। देखिए नारदीय ग्रंथ जो है उसमें इसका ऊपर से तात्पर्य में जो दे रहा है, बहुत सारी जो जल्पना कल्पना मेटेरियल जगत में ब्रोत बहुत सारी है, ऐसा वो करने का इतना जरूरी, उपवास है, एवरीथिंग, बा योग साधन, दान करना, यज्ञ करना, तो कठिन ही होएगा। तो ये सब पंथा हम लोग को ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो भक्ति मार्ग ये आशीर्वाद है। हम लोग जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है तो वो लोगों को भक्ति मार्ग जिसको मिल रहा है वो भगवान का कृपा है, ये सोचने का, क्योंकि भगवान उसको दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा आज का जो तात्पर्य के ऊपर प्रभुपाद जी दे रहा है, जो नारदीय पुराण में ऐसा बताया गया, जो ये सब इतना करने का जरूरी नहीं है। आप भक्ति मार्ग में रहो, उसमें सात्विक होते हुए आप कर्म करो, ये परफेक्ट है। अच्छा, इसका बाद केवल मात्र श्री कृष्ण दिव्य नाम समन्वित महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कीर्तन करार फले भगवत भक्त अनायासे ও সানন্দে পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে, যা অন্য কোনো ধর্ম आचरण माध्यम प्राप्त हुआ जाए ना। देखिए इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, भगवान का दिव्य नाम होली नेम जो महामंत्र हरे कृष्ण, वो हम लोग अगर कीर्तन करेगा तो मेटीरियल जगत में हैप्पीनेस होते हुए हम लोग क्या होगा, और भक्ति मार्ग में रहते भगवत धाम में जा सकते हैं, और दूसरा कोई आचरण करने का हमारा इतना जरूरी नहीं है। तो भगवत गीता अष्टादश अध्याय उपसंहारे बोला হয়েছে सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम भज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामी मा शुचः। आत्मज्ञान लाभेर जन्य अन्य समस्त प्रक्रियागुली बर्जन करे केवलमात्र कृष्ण भावनामय भगवत भक्ति अनुशीलन करते हबे, सेटी जीवनेर परम उद्देश्य साधनेर योग्यता प्रदान करबे। तखन अतीत জীবনের পাপময় কর্মের জন্য চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবান আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। সুতরাং অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করে নিজেকে উদ্ধার করার ব্যর্থ প্রয়াস করার কোনো প্রয়োজন নেই। সকলেরই সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য, সেটি জীবনের পরম পূর্ণতা। তো देखिए 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोक। तो इधर बताने को जा रहे हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामी मा शुचः। इसमें क्या है, भक्ति मार्ग का अनुशीलन करेगा तो हम लोगों को भगवान इधर बताने को जा रहे हैं वो सबसे परफेक्ट है, और इसमें हम लोगों को जितना सारी पाप राशि है वो सब खत्म हो जाएगा। हम लोग जो पीछे जितना सारी पाप किया एवरीथिंग सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इधर खूटी नाटी धर्म छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। सर्वधर्मान एवरीथिंग बोलेगा तो सर्वधर्मान, तो अगर तुम वो छोड़ भी दिएगा तो तुम्हारा दुश्चिंता करने का मतलब जो चिंतन होगा जो मैं ये छोड़ देगा तो मेरा पाप होगा, ऐसा करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान बाधा दे रहा है जो तुमको ये व्यर्थता जो छोटा मोटा जितना सारी धर्म है बा कोई कर्म हो सकता है
उसमें इतना करने का जरूरी नहीं है। तुम भक्ति मार्ग का प्रयास करेगा तो जो सर्वशक्तिमान एवरीथिंग कंट्रोलर जो भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड उसका चरण में आत्मसमर्पण करेगा तो हम लोग को इसका करेगा नहीं करेगा कोई डरने का जरूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है वो सर्वशक्तिमान सब कुछ चालना कर रहे हैं, सुप्रीम कंट्रोलर है। ओके, तो इसलिए उसका पास ही सरेंडर होना जरूरी है हर मनुष्य को। और ये सब जो छोटा मोटा ये सब करे और ना करे इसमें कोई टेंशन नहीं है, एकदम डायरेक्टली बताने को जा रहा है। कृष्ण भगवान खुद ही बताने को गया। 18 चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। ভগবদ গীতার মেন সার জীবনের উদ্দেশ্য এটাই হওয়া দরকার আমাদের। এইটাই অন্ত এটাই সর্বধর্ম পরিত্যাগ জন্য কত বড় কথা সব ছেড়ে দিয়ে ভাঞ্চা কল্পতর ভচ্চ কৃপা সিন্ধু এ বচপতিতানম পাবনেয় বৈষ্ণবের নমো নমো। অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়, জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি সকল ভক্তবৃন্দ কি টিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি দুবাই ভক্তবৃন্দ কি গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। পলাশ প্রভু কি জয়।